ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਐਸੇਸ। ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਐਸੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਅਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਐਸੇ ਦੀ। Some people think that only electric cars should be allowed on the road by 2040. Do you agree? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ that ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਰੋਡਸ ਤੇ ਬਾਈ 2040 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡਸ ਤੇ ਇਨ 2040 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲ ਅਗਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਐਸੇਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਸੇਸ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਐਸੇਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਨਸ, ਡਰਾਬੈਕਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਆਊਟਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਆਊਟਵੇ
एंड मोर दैन सेम ही गल पूछी जा रही है, सेम टाइप ही हो गया, तो तुसी इस चीज़ दे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। इन्हां दोनों का पैटर्न है जिहड़ा दोनों नूं ऑर्गेनाइज करन दा जिहड़ा वे होएगा वो सेम होएगा। सो इस एडवांटेज ते डिसएडवांटेज एसेस इस तरह जिहड़ी क्वेश्चन दी वर्डिंग है तुहानूं एग्जाम दे विच आ सकदी है। हुण असीं एग्जाम्पल देखदे हां। Some people think it is good for students to take a gap year before going to university। तो इस क्वेश्चन दे विच की दिता होया कि कुछ लोग इस तरह सोचते हैं कि इट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स लिए वधिया गल है अगर वो गैप ईयर लैंदे ने बिफोर गोइंग टू यूनीवर्सिटी दे विच एडमिशन लैन तो पहला अगर वो गैप ईयर लैंदे ने। गैप ईयर की हुंदा हैगा, लाइक ज़्यादातर स्टूडेंट्स की करते हैं अपनी +2 करन तो बाद की वो 1 साल का गैप लै लैंदे ने, तो 1 साल के गैप तो बाद की वो अगे नैक्सट अपनी कॉलेज या यूनीवर्सिटी दे विच की है एडमिशन कराउंदे ने। तो इत्थे गैप ईयर बारे पूछा गया है कि गैप ईयर दे की है एडवांटेज की ने, डिसएडवांटेज की ने। मीनस तुहाडे कोल अगे जिहड़ा क्वेश्चन है वो इस तरीके नाल आ सकदा है, वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो कल्ले एडवांटेज भी हो सकते हैं तो कल्ले डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो तुसी आंसर करना है गैप ईयर दे एडवांटेज ते डिसएडवांटेज तुसी दसने ने। जे कल्ले एडवांटेज पूछे ने तो तुसी गैप ईयर दे सिर्फ एडवांटेज ही दसोगे, जे कल्ले तुहाडे कोल डिसएडवांटेज पूछे ने गैप ईयर दे तो तुसी गैप ईयर दे डिसएडवांटेज ही दसोगे। अगर दोनों पूछे जा रहे हैं जिस तरह कि ए वाला दिता होया तुहाडे कोल क्वेश्चन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो तुसी दोनों ही दसने ने। तो इन्हां दा जिहड़ा फॉर्मेट हैगा एसे दा वो अलग अलग होएगा। नैक्सट तुहाडे कोल इस तरीके नाल भी आ सकदा है, डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। की एडवांटेज ने जिहड़े वो डिसएडवांटेजेस तो ज़्यादा ने। मीनस इत्थे भी तुहाडे कोल गैप ईयर दे एडवांटेज है जिहड़े वो पूछे जा रहे हैं, मतलब की एडवांटेज ने जिहड़े वो डिसएडवांटेज तो ज़्यादा ने गैप ईयर दे, तो तुसी उस अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है। थर्ड इस तरीके नाल भी आ सकदा तुहाडे कोल, डू यू थिंक एडवांटेजेस आर मोर दैन डिसएडवांटेज। इनू करन दा वे सेम है, जिस तरह कि तुसी आउटवे वाला करोगे उस तरीके नाल तुसी मोर दैन वाला करोगे। नैक्सट क्वेश्चन टाइप असीं देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन टाइप है प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेज। प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेज काफ़ी कॉमन एसे टाइप है एंड ये की हुंदा तुहानूं एक स्टेटमेंट दी होएगी एंड उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग तुहाडे तो प्रॉब्लम्स पूछिया जाणगियां ते उहदे सोल्यूशनस की ने, मतलब उस प्रॉब्लम्स नूं आपां किवें रोक सकदे हां, उहदे सोल्यूशनस पूछे जाणगे। सो इसी तरह नैक्सट तुहानूं इस तरीके नाल भी आ सकदा है क्वेश्चन, लाइक तुहाडे तो कॉजेस पूछे जा सकते हैं तो सोल्यूशनस पूछे जा सकते हैं। मीनस एक स्टेटमेंट दी होएगी एंड उहदे स्टेटमेंट दे विच तुहाडे कोल की है प्रॉब्लम मैंशन की होएगी एंड उस प्रॉब्लम के कॉजेस की ने, मतलब कारण की ने, वो प्रॉब्लम है जिहड़ी क्यों हो रही है, क्यों पैदा हो रही है, उहदे कॉजेस पूछे जा सकते हैं एंड सोल्यूशनस ते उहनूं असीं किवें रोक सकते हैं, उस प्रॉब्लम नूं किवें रोक सकते हैं। इस तरीके नाल भी तुहाडे कोल क्वेश्चन आ सकता है। नैक्सट है इफैक्ट्स एंड सोल्यूशनस। मीनस इहदे विच भी तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच एक प्रॉब्लम मैंशन की हो तो उहदे इफैक्ट्स पूछे जाणगे। इफैक्ट्स हुंदे ने प्रभाव, मतलब की है उस प्रॉब्लम नाल की इफैक्ट्स पै रहे ने, की प्रभाव पै रहे ने। मीन सोसाइटी ते ला लो या इंडिविजुअल्स ते ला लो भी, लोकां ते उहदा की प्रभाव पै रहा उस प्रॉब्लम का। तो सोल्यूशनस की ने, उस प्रॉब्लम नूं आपां किवें खत्म कर सकते हैं, किवें घटा सकते हैं, वो सारे तुहानूं तरीके लिखने पैणगे। सो इसी तरह कॉजेज एंड इफैक्ट्स भी आ सकता है, इफैक्ट्स एंड सोल्यूशन आ सकता है, इफैक्ट दे नाल सोल्यूशनस आ सकते हैं एंड कॉजेज दे नाल इफैक्ट्स भी आ सकते हैं। सेम इसी तरह तुहानूं प्रॉब्लम मैंशन की होएगी एंड उहदे तुसीं कारण लिखने ने, वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो इफैक्ट्स लिखने पैणगे कि उस प्रॉब्लम के की प्रभाव पै रहे हैं। एंड तीनों भी आ सकते हैं। इस चीज़ का भी तुसीं ध्यान रखना है भी तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच कॉजेज, इफैक्ट्स ते सोल्यूशनस ये तिन्ने चीज़ां भी पूछियां जा सकदियां, तो तुसीं आंसर है जिहड़ा उस अकॉर्डिंग ही करोगे। अगर तुहाडे कोल तिन्ने पूछे जा रहे हैं तो तुसीं तिन्ने ही चीज़ां आंसर करोगे अगर तुसीं टास्क अचीवमेंट ते टास्क रिस्पॉन्स का स्कोर लेना चाहुंदे हो। सो ये सारी चीज़ तुहानूं लिखनी पेगी। इस तो इलावा की है तुहाडे कोल ओनली सोल्यूशनस भी आ सकते हैं। मीन स्टेटमेंट दी होएगी, उहदे विच तुहानूं प्रॉब्लम दसी होएगी तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशनस की ने। अगर तुहाडे कोलों इकल्ले सोल्यूशनस पूछे जा रहे हैं दैन तुसीं सोल्यूशनस ही लिखने ने अपने एसे दे विच। बाकी जिहड़े कॉजेज, इफैक्ट्स ये चीज़ां तुसीं मैंशन नहीं करनियां, ओनली सोल्यूशनस लिखने। जिन्ना तुहाडे तो पूछा जा रहा है तुसीं उन्ना ही डिस्क्राइब करोगे। नैक्सट ओनली इफैक्ट्स भी आ सकता है, प्रॉब्लम के इफैक्ट्स की ने, प्रभाव की ने, ये भी तुहानूं आ सकता है। इस तरीके नाल तुसीं ओनली इफैक्ट्स लिखने ने। ओनली कॉजेज भी आ सकता है, सिर्फ कारण पूछे जा सकते हैं, प्रॉब्लम दसी हो उहदे कारण की ने, तुसीं उहदे कारण सारे लिखने ने एसे दे विच। इस तरीके नाल भी आ सकता है। एग्जाम्पल रीड करते हैं। सम चिल्ड्रन हैव सीरियस वेट प्रॉब्लम्स, वट आर द सोल्यूशनस, वट प्रॉब्लम्स डज दिस कॉज। सम चिल्ड्रन हैव सीरियस वेट प्रॉब्लम्स, तो कहते कुछ बच्चों की है सीरीयस वेट प्रॉब्लम्स होंदियां ने,
वेट प्रॉब्लम्स नेगियां लाइक उन्होंने विच मोटापा कह सकते आपां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਸ ਦਿਸ ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ weight ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਾਈਕ ਇਫੈਕਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ causes solutions भी पूछे जा सकते हैं and causes effect solution ये तीनों चीज़ां भी पूछिया जा सकती only solutions only effects only causes इस ढंग नाल भी तुहाडे कोल जिहड़ा क्वेश्चन है वो आ सकता तुसीं उस अकॉर्डिंग ही आंसर करना है सो इस प्रॉब्लम सोल्यूशन एसेज ते इस तरीके नाल तुहानूं ये क्वेश्चनस ने जिहड़े आ सकते हैं ते तुसीं जिस अकॉर्डिंग तुहाडे कोलों क्वेश्चन पूछा गया तुसीं उस अकॉर्डिंग इहनूं आंसर करना है इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है हुण असीं नैक्सट देखते हैं नैक्सट असीं करते हैं डिस्कशन एसेज डिस्कशन एसेज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ एंड गिव योर ओपीनियन ते अपना ओपीनियन देना तुहाडा की थॉट है वो तुसीं दसना नैक्सट इकल्ला तुहाडे कोल इदां भी आ सकदा है डिस्कस बोथ व्यूज़ मतलब तुसीं सिर्फ उन्हां नूं डिस्कस करना है बट तुसीं अपना ओपीनियन नहीं देना सो इस चीज़ का ध्यान रखना अगर तुहाडे तो ओपीनियन पूछा गया तुसीं तां ही ओपीनियन अपना देना हैगा अगर नहीं पूछा गया तो तुसीं ये नहीं करोगे ओपीनियन तुसीं देना तां बैटर है भी अगर तुसीं पैराग्राफ कंकलूडिंग पैराग्राफ दे विच दोगे तां वधिया गल है हमेशा ही सानू कनकलूजन दे विच ही ओपीनियन देना चाहिए सो हुण असीं इहदे देखदे हां नैक्सट दी एग्जांपल्स देखदे हां कि किस तरीके नाल क्वेश्चन आंदा है फर्स्ट एग्जांपल रीड करदे हां सम पीपल थिंक देयर शुड बी फ्री हैल्थ केयर फॉर ऑल पीपल बट अदर्स डिसएग्री तो क्वेश्चन दे विच की दित्ता होया कि कुछ लोग कहंदे ने कि देयर शुड बी फ्री हैल्थ केयर फॉर ऑल पीपल तो कहते फ्री हैल्थ केयर होनी चाहिए सारे ही लोगों लिए फ्री हैल्थ केयर होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए मतलब कोई पैसा नहीं लगना चाहिए बट अदर्स डिसएग्री तो एक साइड के विच दस्या जा रहा है फेवर किया जा रहा है कि फ्री होनी चाहिए हैल्थ केयर दूसरी साइड ये गल की जा रही है कि डिसएग्री मतलब कि यह भी नहीं होनी चाहिए फ्री नहीं होनी चाहिए हैल्थ केयर तो कहना मतलब ये तुहानूं एक स्टेटमेंट दी हुई है उहदियां टू साइड्स ने दो डिफरेंट साइड्स दित्तियां होईयां ने जो एक दूजे दे की ने अगेंस्ट नहीं है एंड तुहाडे तो इहदे विच क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस बोथ साइड्स मीनस इहदे विच तुहाडे कोलों ओपीनियन नहीं पूछा गया सिर्फ डिस्कस ही किया गया भी दोनों साइड्स नूं तुसीं डिस्कस करो टू साइड्स दित्तियां होईयां इन्हां नूं सिर्फ तुसीं डिस्कस करना ओपीनियन नहीं देना सो इसी तरह असीं नैक्सट एग्जांपल देखदे हां नैक्सट दे विच तुहानूं दित्ता है सम पीपल थिंक दैट अर्बन स्पेसिस शुड बी यूज्ड फॉर पार्क्स रैदर दैन फॉर हाउसिंग तो इत्थे अर्बन स्पेसिस की गल की जा रही है कि कुछ लोगों का ओपीनियन दिता होया सम पीपल थिंक दैट मतलब उन्हों का ओपीनियन है कि जी अर्बन स्पेसिस ने शुड बी यूज्ड फॉर पार्क्स भी जी अर्बन स्पेसिस ने अर्बन स्पेसिस होंगी जी शहरों के थां होंगी है भी उन्होंने यूज़ किया जाना चाहिए सिर्फ पार्क्स लिए मतलब उत्थे पार्क्स बनाने चाहिए ने रैदर दैन फॉर हाउसिंग की थां ते भी उत्थे रेजिडेंशियल एरिया की थां ते की हैगा पार्क्स ने जिहड़े ओह बनाने चाहिए ने तो ये की होया ये तुहाडे कोल ये दिता होया लाइक तुहाडे कोल एक स्टेटमेंट है बट वो दो सैपरेट इशूज़ दिते हुए हैं दो अलग अलग इशूज़ दिते हुए हैं एक स्टेटमेंट के मीनस अर्बन स्पेसिस की गल हो रही है बट इन्होंने क्या है पार्क्स ते हाउसिंग दो सैपरेट इशूज़ की गल की जा रही है भी जी अर्बन स्पेसिस है वो यूज़ की जानी चाहिए पार्क्स लिए या फिर हाउसिंग लिए मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं भी पार्क्स लिए यूज़ की जानी चाहिए अर्बन स्पेसिस कुछ लोग कह रहे हैं हाउसिंग लिए यूज़ की जानी चाहिए तो स्टेटमेंट एक होगी बट ये दो अलग अलग इशूज़ हो गए तो दोनों भी डिस्कस करना पऊगा पार्क्स में भी तुहानूं डिस्कस करना पऊगा ये बारे भी लिखना पऊगा कि क्यों कुछ लोग कहते हैं भी जी अर्बन स्पेसिस है वो पार्क्स लिए यूज़ की जानी चाहिए ने तो क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अर्बन स्पेसिस है उन्होंने हाउसिंग लिए यूज़ किया जाना चाहिए तो दोनों बारे ही तुसीं अपने व्यूज़ आ जिहड़े दसने डिस्कस करना दोनों ही व्यूज़ नूं एंड नैक्सट तुहानूं नीचे दिता होया डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपीनियन ये वाला टाइप आ गया इहदे विच तुहाडे कोल ओपीनियन भी पूछा गया मीनस तुसीं ये डिस्कस करने ही करने हैं पीपल के जोड़े थॉट दिते हुए ने ओपीनियन दिता होया उन्होंने तुसीं डिस्कस करना ही करना है नाल तुसीं अपना ओपीनियन है जिहड़ा वो देना है कनकलूडिंग पैराग्राफ के विच सो इस डिस्कशन एसेज इस तरीके नाल ये क्वेश्चनस ने जिहड़े वो एग्जाम दे विच आउंदे ने
एंड तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना जिस तरह दस्सिया अगर तुहाडे कोल ओपीनियन पूछा गया तां ही तुसीं ओपीनियन अपना देना, अदरवाइज तुसीं ओपीनियन नहीं देना। नैक्सट क्वेश्चन टाइप है डायरैक्ट क्वेश्चन एसेज। सो डायरैक्ट क्वेश्चन एसेज देखते हैं। डायरैक्ट क्वेश्चन एसेज दे विच की हुंदा है, इहदे विच तुहानूं एक स्टेटमेंट दित्ती हुंदी है एंड उस स्टेटमेंट दा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकदा है, 2 क्वेश्चनस भी पूछे जा सकदे हैं एंड 3 क्वेश्चनस भी हो सकदे ने। सो कई बार स्टूडेंट्स ने जिहड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उन्होंने ये लगता है कि काफ़ी वड्डी स्टेटमेंट आ गई, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो इस चीज़ दे विच कन्फ्यूज़ होने वाली गल नहीं हुंदी, बिल्कुल ईजी हुंदा है। जिन्ने क्वेश्चनस तुहाडे तो पूछे जा रहे हैं वो सारे ही तुसीं आंसर करने हुंदे ने प्रॉपर पैराग्राफ्स दे विच। सो देखते हैं असीं एग्जाम्पल। सम पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वैडिंग्स। तो इस स्टेटमेंट दे विच किहा गया कि कुछ लोग ने जिहड़े वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं वैडिंग्स ते। वैडिंग्स ते मतलब विआह शादियां ते बहुत ज़्यादा पैसा जिहड़ा वो खर्च करते हैं। वाई डू दे डू दिस, क्यों करते हैं वो? डू यू थिंक इट इज़ गुड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वैडिंग्स। डू यू थिंक तुहानूं की लगदा है भी ये वधिया गल है भी इन्ना सारा पैसा जिहड़ा खर्च किया जाता वैडिंग्स ते, भी ये एक वधिया गल है भी गुड है? तो ये विच देखो हुण इहदे विच तुहानूं क्वेश्चन दे विच की है, एक स्टेटमेंट दित्ती हुई है, उपर आ स्टेटमेंट है तुहाडे कोल, सम पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन वैडिंग्स। ये स्टेटमेंट दित्ती हुई है एंड इहदे रिगार्डिंग तुहाडे कोलों 2 क्वेश्चनस पूछे गए ने। फर्स्ट, क्यों लोग इन्ना पैसा जिहड़ा खर्च करते हैं वैडिंग्स ते। सैकेंड, भी एक वधिया गल है भी ये खर्चा करना वैडिंग्स ते कीता जाना चाहिए या नहीं, मतलब ये वधिया है या बुरा है। तो इस तरीके नाल इहदे विच 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर जिहड़े क्वेश्चनस एग्जाम दे विच आउंदे ने उहदे विच 2 ही पूछे जांदे ने, इस करके इहनूं डबल क्वेश्चन टाइप भी कह दिंदे ने। सो ये सी डायरैक्ट क्वेश्चन एसेज। तो इस तरीके नाल एग्जाम दे विच आउंदे ने, मीनस तुहाडे कोल 1, 2 या 3 क्वेश्चनस भी एग्जाम दे विच आ सकदे ने। तो इहदे विच तुसीं कन्फ्यूज़ नहीं होना, इहनूं ईजीली तुसीं अटैम्प्ट कर सकदे हो। सो अज की वीडियो के असीं डिस्कस किया कि किहड़े टाइप के एसेज ने ते किस तरीके नाल एग्जाम दे विच आउंदे ने। सो अगर तुहानूं एसेज दे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट कर सकदे हो। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो दैन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सबसक्राइब आवर चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।